हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सर सैयद अहमद खान। Sir Syed Ahmad Khan, there is a most important reformer on this period time. Sir Syed Ahmad Khan believed that the religious and social life of Muslim could be improved only by the imbibing modern Western scientific and knowledge and culture. His the major concern was the removal of social and educational backwardness among the Muslim. He worked hard to raise their status of Muslim women. He was against the Parda system, androgamy, easy divorce, and the lack of education among the girl. Third, he was opposed by the orthodox of Muslim. He made a commendable effort in a promote the human educations. There is a promote of as humans education, and he tried to interrupt the Quran in the light of reason vision and spoke out of against the fanaticism and ignorance. He also initiated a social reform, the upliftment of Muslim society. Throughout his earlier life, he advocated the study of English language even against the opposition of the orthodox of Muslims. He considered that only a modern education could lead a Muslim to about to progress. He established an English school in Ghazipur, present day of Uttar Pradesh. There is a Ghazipur is the first school established. There is present of Uttar Pradesh in 1864. He studied the Muhammadan Anglo-Oriental College, means MAO, at the Aligarh in 1875, which later developed into the Aligarh Muslim University. There is a development here, Aligarh Muslim University. It is a provided education in the humanities and science through the English medium. He also established a scientific society for translating English book. He also published a journal spreading awareness among the Muslim to about social reform, especially to about the modern education. He studied the Muhammadan's educational conference for the spreading liberal idea among to the Muslim. The movement for the reform started by his now as the Aligarh movement, which proved to be an important step to about the social and political awakenings among the Muslim. On your screen, there is a most important reformer here, Sir Syed Ahmad Khan. There is a most important achievement ऑन दिस पीरियड टाइम फॉर सर सैयद अहमद खान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे समाज सुधारकों के अंतर्गत। सर सैयद अहमद खान का मानना है कि मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में सुधार आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति अपनाने से हो सकता है। कहते हैं, देखिए, उस समय हमारा समाज कुछ इतना ही पिछड़ा हुआ था कि उनको पश्चिमी ज्ञानों की आवश्यकता थी, लेकिन आधुनिक समय में हमारा समाज इतना सभ्य हो चुका है कि हमें अब पश्चिमी ज्ञानों के अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आधुनिक युग में हैं। और आधुनिक युग का मतलब ही है कि हम हर चीज़ में सक्षम हो चुके हैं। कहते हैं आज हमारा संस्कृति में भी देखिए बहुत ही बदलाव देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन उस समय सर अहमद खान जी ये कहते थे कि जीवन में सुधार में आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान का संस्कृति अपनाने से ही हो सकता है। और उनके मुसलमानों में सामाजिक और सियासी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विभिन्न कार्य भी उन्होंने किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की, और वो पर्दा प्रणाली, बहुविवाह, आसान तलाक और जो है लड़कियों के बीच शिक्षा की कमी को विरोध भी थे। क्योंकि देखा जाए तो पर्दा प्रणाली जो थी मुस्लिम धर्म में बहुत ही जो है कुप्रथाओं के रूप में थी। कहते बहुविवाह भी उस समय प्रचलित था, और आसान तलाक यानी उस समय तलाक की जो प्रावधान थी बहुत ही सरल थी, जो पुरुषों के द्वारा आसानी से दे दिया जाता था, जो कि सही नहीं था। कहते हैं जब पुरुष तलाक दे सकता तो क्या स्त्री दे नहीं सकती है? तो पुरुषों की तलाक को मान्यता दी जाती थी और महिलाओं के तलाक की मान्यता नहीं दी जा रही थी। इसलिए यहाँ पर सर सैयद अहमद खान जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उन्होंने लड़कियों के बीच शिक्षा की कमी के विरोध भी किया। हालांकि रूढ़वादी मुसलमानों ने उनका विरोध अवश्य किया।
उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किया। उन्होंने तर्क सहित कुरान की व्याख्या करने की कोशिश भी की और कट्टरता और अज्ञानता के विरुद्ध अपनी बात भी कही। उन्होंने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए समाज सुधार प्रयास किया। कहते हैं जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, अच्छा बातें बताता है, तो उसको कोई भी नहीं समझता है, और ये परम सत्य बात है। कहते हैं जो विचार सही है, जो उचित है, उसको सदैव ही हमें मानना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए। और जो गलत है, जो लगता है आपको गलत बात बताई जा रही है, आप कदाचित उसका अनुसरण न करो, क्योंकि इससे हमारे देश और समाज के लिए वो काफ़ी बड़ा विष के कार्य करता है। देखिए हमारे समाज आज आधुनिक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए जब कुछ कार्य ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कभी कभी किसी के बातों में आके आप लोग सार्वजनिक दंगे फसाद में जो है पार्टिसिपेट करने लग जाते हो, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुष्कर्म और बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। आपने कभी सोचा है कि ये दंगे फसाद में न जाने कितने जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो किसी न किसी घर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इवन कि देखिए हमारे देश की संपत्ति का भी नुकसान होता है। तो ये कभी भी कोई व्यक्ति नहीं सोचता है, क्योंकि उस समय उनकी विवेकता ही कार्य करता नहीं है। कहते दूसरे की बातों पे इतने जल्दी जो है अमल नहीं करना चाहिए। पहले अपनी जो बुद्धि कसौटी पर उसको समझो, तोलो और फिर उसको करो। अगर वो जन कल्याण के लिए है, उचित है, तभी आगे बढ़ो। अगर किसी के एक का स्वार्थ इसमें सिद्ध होता है तो वो कार्य कभी भी ना करो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। अपने आरंभिक जीवन के दौरान उन्होंने भी अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के खिलाफ रूढ़वादी मुसलमानों का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि केवल आधुनिक शिक्षा ही मुसलमानों को प्रगति की दिशा में ले जा सकती है। कहते हैं आधुनिक शिक्षा काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जिस तरह हमारे समाज में कुप्रथाएं ने अपना घर कर रखा था, उसमें आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक विचारधारा ही उनको जो है इस दलदल से निकाल सकता था। उन्होंने 1864 में गीजापुर में वर्तमान जो कि उत्तर प्रदेश है, यानी गीजापुर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किया। उन्होंने अहमदन एल्गो एरिस्टल कॉलेज यानी MAO को जो है बाद में 1875 में अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जो आज भी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में आज जाना जाता है। यहाँ मानविकीय और विज्ञान के क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने अंग्रेजी जो है पुस्तकों का अनुवाद के लिए एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी किया, जो कि काफ़ी सराहनीय था। उन्होंने मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधारों के प्रति जागरूकता के प्रसार और जो है विशेष रूप से आधुनिक शिक्षा के लिए पत्रिका प्रकाशित भी किया। पत्रिका के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जाना गया, जो मुसलमानों के बीच सामाजिक राजनीतिक जागृति की ओर महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो कहते हैं इनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। आपके स्क्रीन पे जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो है सर सैयद अहमद खान जी। इन्होंने समाज में जो है मुस्लिम धर्म के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इनके योगदान को जो है कोई भुला नहीं सकता।